Communication is a process of exchange of ideas, facts, feeling, views, etc. between two or more people to create a common understanding. According to the Rogers, communication is a process by which people create and share information with one another in order to reach common understanding. In the last video we discussed communication process. The communication process starts from the sender and ends with the feedback given by the receiver. So there are basically 8 elements of communication process, that is sender, message, encoding, channel, decoding, receiver, feedback and noise. In the last video we also discussed the importance of communication. There are basically many importance of communication, that is communication acts as basis of coordination. It helps in smooth working of an enterprise. It acts as a basis of decision making. It increases managerial efficiency. It promotes cooperation and industrial peace. It establishes effective leadership, and with the help of effective communication we boost morale and provide motivation to the employees. In today's video we will discuss the next point related to the communication, that is the types of communication. There are basically 2 types of organization which are discussed in the organizing chapter. There are basically 2 types of organization: formal organization and informal organization. Any communication process followed by formal organization are known as formal communication, and any communication process used by informal organization can be said as informal communication. So basically 2 तरह का communication को हम define कर सकते हैं, formal communication and informal communication. जब हम formal organization की बात करते हैं तो उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के प्रोसेस को फॉलो अप करते हैं. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे जिस कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं उसे हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन, दे आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ communication, that is formal communication and informal communication. So communication taking place within the organization may be classified as formal communication and informal communication. The number 1 is formal communication. It refers to the communication taking place through official channels in an organization. Such type of communication take place between managers and worker, or managers working at the same cadre, or employees working at the same cadre. Through such communication may be oral, written, but it is recorded and filled in the office. यानी जब हम ऑफिशियल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जहाँ पे मैनेजर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनके बीच में अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए जिस कम्युनिकेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जिस ऑफिशियल चैनल का यूज़ किया जाता है, उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं. जैसे अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो टॉप लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ अपने लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मिडिल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ से कम्युनिकेट करने के लिए वो फॉर्मल कम्युनिकेशन की हेल्प लेता है, वेयर एज अ लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ एंड मिडिल लेवल एम्प्लॉयज़ अपने टॉप लेवल से कम्युनिकेट करने के लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन की हेल्प लेता है. एंड सच काइंड ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इट मे बी इन रिटेन और इन ओरल फॉर्म, यानी इसे हम रिटेन वे में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं एज वेल एज ओरल फॉर्म में भी करते हैं. जनरली अगर हम बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो रिटेन फॉर्म में होता है. जनरली अगर टॉप लेवल को अपने मिडिल लेवल या लोअर लेवल को कोई इंस्ट्रक्शन देना हो या कोई गाइड करना हो तो वो
फॉर्मल कम्युनिकेशन के रूप में रिटन डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज़ और या फिर मिडिल लेवल ऑफ एम्प्लॉइज़ को कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी आइडियाज़ शेयर करनी होती है या कोई भी रिक्वेस्ट करनी होती है तो वो उसके लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन में बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दैट इज़ वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। पहले तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप देखिए कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल्स, मिडिल लेवल्स एंड सुपरवाइजरी लेवल। टॉप लेवल अपने मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है उसे वो ऑर्डर फॉर्म में शेयर करता है, वेयर इज अ सुपरवाइजरी लेवल एंड मिडिल लेवल अगर टॉप लेवल से कोई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करता है तो वो रिक्वेस्ट लेवल में होता है, रिक्वेस्ट फॉर्म में होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये अपवर्ड वर्टिकल फॉर्म में हो रहा है एज वेल एज हॉरिजॉन्टल वे में हो रहा है। यानी अगर हम बात करें बेसिकली तो वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, उस पर हम लोग पहले बात करते हैं। यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जनरली टॉप लेवल, मिडिल लेवल या फिर सुपरवाइजरी लेवल से कम्युनिकेट करता है, मिडिल लेवल सुपरवाइजरी लेवल से कम्युनिकेट करता है, सुपरवाइजरी लेवल मिडिल लेवल या फिर टॉप लेवल से कम्युनिकेट करता है, एंड मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजर लेवल टॉप लेवल से कम्युनिकेट भी कर सकता है। तो एक दूसरे से वो अपने आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। अगर हम बात करें कि ये वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, तो उसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे अगर आप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखिए तो अगर टॉप लेवल, मिडिल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल से कम्युनिकेट करें या फिर सुपरवाइजर लेवल या मिडिल लेवल टॉप लेवल से कोई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करता है या कम्युनिकेशन करता है तो उसे हम वर्टिकल करते हैं। वर्टिकल का मतलब होता है टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। ओके, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बॉटम टू टॉप एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टॉप टू बॉटम। वहीं हॉरिजॉन्टल की बात करें, अगर मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने ही लेवल्स के किसी एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करता है तो उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल करते हैं। यानी टॉप लेवल यानी सीईओ जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर से कम्युनिकेट करेगा तो भी वो उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर्स के साथ कम्युनिकेट करेगा तो उसे भी हम हॉरिजॉन्टल कहेंगे। और सुपरवाइजर लेवल पे जो फोरमैन है अगर वो वर्कर्स के साथ कोई कम्युनिकेट करता है तो उसे भी हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के वे में देखेंगे। सो अगर हम पूरे फॉर्मल कम्युनिकेशन को स्टडी करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है या तो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप यानी वर्टिकल वे में कम्युनिकेट करती है, या तो सेम लेवल ऑफ पोस्ट के साथ वो कम्युनिकेशन करती है। सो अगर सेम लेवल के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे। और अगर कम्युनिकेशन टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप यानी अपने से ऊपर पोस्ट पे या अपने से नीचे की पोस्ट के साथ, अपने सुपीरियर के साथ या अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है तो उसे हम लोग वर्टिकल प्रोसेस कहेंगे। सो व्हाट इज़ वर्टिकल कम्युनिकेशन? लेट्स वी डिस्कस इट। कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन टू लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ कॉल्ड वर्टिकल कम्युनिकेशन। यानी यू नो वेरी वेल कि जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो तीन होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजर लेवल। तो अगर लेवल्स के बीच में टॉप लेवल मिडिल लेवल के साथ, मिडिल लेवल सुपरवाइजर लेवल के साथ, सुपरवाइजर लेवल मिडिल लेवल के साथ, मिडिल लेवल टॉप लेवल के साथ कोई भी कम्युनिकेशन कर रहा है तो उसे हम वर्टिकल करेंगे क्योंकि यहाँ पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट होते हैं। इट मे बी टेक प्लेस इन द टू फॉर्म्स, नंबर 1 अपवर्ड कम्युनिकेशन, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल, नंबर 2 डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन इन विच अ सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट विथ हिज सुपीरियर। यानी अपवर्ड कम्युनिकेशन किस लिए होता है? जनरली वो सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर के साथ कम्युनिकेशन करता है, जैसे एप्लीकेशन फॉर ग्रांट फॉर लीव, सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट। यानी अगर सबऑर्डिनेट्स को लीव चाहिए तो वो अपने सुपीरियर के साथ कम्युनिकेट करके लीव मांग सकता है। वहीं अगर कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी है तो वो अपने सुपीरियर को प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। वहीं बात करें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की तो इन विच सुपीरियर कम्युनिकेट विथ हिज सबऑर्डिनेट। यानी जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कम्युनिकेट करता है तो हम लोग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे सेंडिंग नोटिस रिगार्डिंग अ मीटिंग, पासिंग ऑन गाइडलाइन फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट। यानी कोई नोटिस भेजनी हो मीटिंग की
या कोई गाइडलाइन देनी हो टॉप मैनेजमेंट की, तो उस केसेस में हम लोग डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करते हैं। जनरली जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है वर्टिकल का, वो रिक्वेस्ट फॉर्म में होता है, और जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है वो ऑर्डर फॉर्म में होता है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द हॉरिजॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दैट प्लेस बिटवीन इंडिविजुअल वर्किंग एट अ सेम लेवल, इट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यानी सेम लेवल्स के, यानी मिडिल लेवल अपने मिडिल लेवल के किसी अदर एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करे, टॉप लेवल का कोई एम्प्लॉयज़ टॉप लेवल के किसी अनदर एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करे, सुपरवाइजर लेवल का कोई एम्प्लॉयज़ अपने अदर सुपरवाइजर लेवल के एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करता है, तो हम हॉरिजॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में उसको रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन मैनेजर में कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग मैनेजर टू डिस्कस अबाउट प्रोडक्शन शेड्यूल। तो प्रोडक्शन मैनेजर अगर मार्केटिंग मैनेजर के साथ, मार्केटिंग मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर के साथ, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ मैनेजर हैं, तो उनके साथ अगर कम्युनिकेशन करता है तो उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करते हैं। यानी बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ होती है? जहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहाँ पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर क्लियर होती है, अकाउंटेबिलिटी भी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ता है, हमें हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, हमारे राइट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो अगर इसमें दो है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का फॉलो होता है जब हम अपने सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के साथ, यानी डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, तो हम लोग वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मीन्स अ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अ टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इन विच वी communicate the information with the same level of management, यानी middle level communicates with the another employees of the middle level of employees management, as well as top level of employees of top level communicates with the another employees of the top level of management. So such kind of example will be treated as horizontal communication. Thereafter we are discussing the next topic of formal communication, that is networks of formal communication. If we are talking about the network मतलब how we will communicate, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, ओके। बट द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज दिस, द पैटर्न ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, हाउ वी विल द कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन और आइडियाज इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन which can be easily understand by the networks. That is the first one is a single chain. So first of all, the pattern through which communication flows within the organization is indicated by communication network. यानी एक ऐसा पैटर्न जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन को इंटर एक्सचेंज करते हैं, सो उनको हम लोग कम्युनिकेशन नेटवर्क करते हैं। सम पॉपुलर फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क आर एज फॉलोज। द फर्स्ट वन इज सिंगल चैन। In this network, communication flows from every superior to his subordinate in a single chain. यानी अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन का इस नेटवर्क की बात करें तो इसमें हम लोग एक इन्फॉर्मेशन दूसरे के पास जाती है, फिर दूसरे से तीसरे के बाद चौथे के पास। यानी कि इन द सिंगल चेन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क वी कम्युनिकेट एनी इन्फॉर्मेशन बाय द सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट इन अ सिंगल चेन। यानी ही इज़ अ सुपीरियर, उसने अपने सबऑर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन दी। अब ये सी का सुपीरियर है, उसने सी को दिया, ये डी का सुपीरियर उसने डी को इन्फॉर्मेशन दिया, और डी ने अपने सबऑर्डिनेट ई को दिया। यानी सिंपल सी अगर बात करें कि ए जो है वो हेड है, बी उसका सबऑर्डिनेट, तो उसने पहले इन्फॉर्मेशन बी को दी, बी ने अपने सबऑर्डिनेट सी को दी, सी ने अपने सबऑर्डिनेट डी को दी, डी ने अपने सबऑर्डिनेट ई को दी। तो यहाँ सिंगल चेन, एक चेन के वाइज आपने देखा कि इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है, सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल चेन कम्युनिकेशन नेटवर्क। द सेकेंड टाइप ऑफ communication network, that is a wheel network. Wheel network, in this network all subordinate working under a superior communicates through him only. The superior is at the hub of the wheel communicating with the all at the same time. यानी यहाँ पे जो A है वो superior है और उसके subordinate है B, C, D, E. यानी अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसको भेजनी है तो वो खुद ही भेजेगा B, C, D, E को। यानी इससे पहले आपने देखा था चेन वाले में, सिंगल चेन में तो एक इन्फॉर्मेशन सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को दे रहा था, फिर दूसरा सबऑर्डिनेट अपने सबऑर्डिनेट्स को दे रहा, फिर तीसरा सबऑर्डिनेट अपने सबऑर्डिनेट्स को दे रहा था। सो बेसिकली वहाँ पे क्या हो रहा था, सिंगल चेन था, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट तो हो रही थी बट वन बाय वन हो रही थी। बट यहाँ पे एज अ व्हील मतलब सेंट्रल पॉइंट कौन होगा कम्युनिकेशन नेटवर्क का, दैट इज़ अ सुपीरियर। उसके अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट्स होंगे
उनको इन्फॉर्मेशन वो खुद देगा एट द सेम टाइम. द थर्ड is circular network. In this network, communication moves in a circle from one person to another but comes in this network. सर्कुलर नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि इसमें इंफॉर्मेशन सर्कल में जाती है, यानी कि इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द ए ने किसको दिया बी को, बी ने वो इन्फॉर्मेशन किसको दिया सी को, सी ने फिर वो इन्फॉर्मेशन किसको दिया डी को, फिर डी ने उस इन्फॉर्मेशन को लिया ई को दिया और ई ने फिर वो ए को दिया. जब एक के पास वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होकर आती है तो ए मान जाता है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की थी वो इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच गई है. यानी सर्कुलर इन्फॉर्मेशन में जो सर्कुलर नेटवर्क कम्युनिकेशन में ये होता है कि जो भी हम इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को करते हैं और वो एट द लास्ट फिर आकर जहाँ से वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है वहाँ पे जाकर एंड होती है. द नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट type of communication network, that is free flow. In this network, each person can communicate with others freely and therefore communication is fast in this network. फ्री फ्लो की बात करें कि इस तरह के फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें, इस तरह के कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे कोई भी किसी को भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता है, यानी फ्री फ्रॉम द एनी बाउंडेशन. जैसे आपने सिंगल चेन में देखा, व्हील में देखा, सर्कुलर में देखा, तो एक प्रॉपर बंदा होता था जो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करता था एक पर्टिकुलर पर्सन को, फिर पर्टिकुलर पर्सन फिर फर्दरली वो इन्फॉर्मेशन दूसरे सबऑर्डिनेट्स को या दूसरे वर्कर्स को सर्कुलेट करता है. बट फ्री फ्लो एक ऐसा फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जिसमें कोई भी किसी को भी इन्फॉर्मेशन ईजिली सर्कुलेट कर सकता है और इसीलिए इस टाइप के कम्युनिकेशन की जो स्पीड होती है वो इन कंपेयर टू द अदर नेटवर्क्स बहुत ही फास्ट होती है. सो अगर कोई इन्फॉर्मेशन बहुत अर्जेंट होती है, बहुत तेज़ी से लोगों तक बीच में फैलानी होती है, तो इस केसेस में जनरली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फ्री फ्लो कम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज़ किया जाता है. द नेक्स्ट वन इज़ इन्वर्टेड वी. इन्वर्टेड वी मीन्स इन दिस नेटवर्क अ सबऑर्डिनेट इज़ अलाउड टू कम्युनिकेट विद हिज सुपीरियर एंड हिज सुपीरियर. यानी इन्वर्टेड वी के नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क में क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है अपने सुपीरियर को और फिर हिज सुपीरियर्स को. जैसे आपने देखा इसमें सी एंड डी एक सबऑर्डिनेट्स हैं, उन्होंने पहले अपनी इन्फॉर्मेशन दी ए को यानी अपने सुपीरियर को, फिर वो इन्फॉर्मेशन किसको दी, अपने सुपीरियर के सुपीरियर को. सो इट इज़ कॉल्ड द इन्वर्टेड वी. यानी इसमें क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं अपने सुपीरियर को तो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करते ही साथ ही साथ अपने सुपीरियर के सुपीरियर को भी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं. तो दे आर बेसिकली 5 नेटवर्क ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, 5 टाइप्स ऑफ network of formal communication, that is single chain, wheel network, circular network, free flow and inverted. Okay, now we will move to the second types of communication, that is informal communication. In the simple way we can say, in the informal organization we followed the informal communication, and informal communication is also known as a grapevine communication. Okay, it takes place in an organization without following the formal line of communication. Such type of communication usually take place among the workers to exchange their views and to satisfy their social needs. देखिए यहाँ पे सोशल नीड्स की बात आई, एंड यू नो वेरी वेल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम क्रिएट करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में टू फुलफिल देयर सोशल नीड्स, तो उसे हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, आइडियाज़ एक्सचेंज होती हैं, थिंकिंग एक्सचेंज होती हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती हैं, डाटा एक्सचेंज होते हैं. तो उसके लिए जिस भी कम्युनिकेशन टाइप्स का यूज़ किया था उसे हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं. इसमें इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करने का कोई सीधा तरीका नहीं होता, यानी इसमें फ्री होता है. सबसे पहली बात ये, कोई सिस्टमेटिक नहीं होता कि हमें इसको सपोर्ट करना है, वो उसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा. The network of communication followed in the informal communication is referred to as a grapevine network because it is spread throughout the organization without its branches going out in all direction irrespective of level of authority. यानी इसमें level of authority से कोई लेना देना नहीं होता है. जो उस informal organization का पार्ट होता है, information उस तक easily पहुँच जाती है. जैसे workers chit chatting in the canteen, discussion about rumors. तो you know very well अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप एज अ वर्कर कुछ
कैंटीन में जब फ्री टाइम में बैठते हैं तो आप डिस्कशन करते हैं, सच काइंड ऑफ कुछ तरह की गॉसिप्स करते हैं, डिस्कशन करते हैं रूमर्स के बारे में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड्स रैपिडली बट गेट्स डिस्टॉर्टेड समटाइम्स, यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से फैलता है बट ये कभी कभी हार्मफुल हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द सोर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ईजिली डिटेक्टेड, यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहाँ से आया है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, इसके बारे में कोई जल्दी पता नहीं लग पाता। इट मे बी यूज बाई मैनेजर टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड टू नो द रिएक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट्स रिगार्डिंग सम कम्युनिकेशन, यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तेज़ी से फैलता है, कभी कभी ये गलत भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल भी होता है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो बेस है, यानी वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से सर्कुलेट हो रही है, इसका पता लगाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी टॉपिक पे या किसी भी आइडियाज़ पे उसको सजेशन लेना है और वो भी करेक्ट सजेशन लेना है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन काफ़ी हेल्पफुल करता है, क्योंकि ना सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन को ईज़िली ट्रांसमिट करता है, पहुंचाता है, बल्कि लोगों का रिएक्शन भी, एक्चुअल रिएक्शन भी पता चलता है। जैसे अगर हम बात करें आपसे कि मैंने कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया और आपसे पूछा कि आपको समझ में आया, तो आप जनरली ड्यू टू एनी रीज़न, कोई भी रीज़न होगा, आप कह दोगे यस सर समझ में आ गया, यानी इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन आपने कहा कि यस इट ऑल इज़ वेल। बट जब आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आप कहोगे यार ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप जो भी फीडबैक देते हो, जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन बताते हो, जो भी अपना रिएक्शन बताते हो, वो कहीं ना कहीं एज़ कम्पेयर टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं सही होता है, और वो एब्सोल्युटली आपके नीड के अकॉर्डिंग होता है। सो लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is networks of informal communication. If we are talking about the networks of informal communication, so the first network of informal communication, that is single strand network. In this network each person communicate with another in a sequence. इसमें क्या होता है कि इनफॉर्मल ग्रुप का जो एक बंदा होता है वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करता है, फिर दूसरे बंदे को देता है, फिर दूसरा तीसरे बंदे को देता है, तीसरा चौथे बंदे को देता है, चौथा पाँचवें, यानी इट इज़ सेम एज द चेन। बट अंतर ये है कि चेन नेटवर्क फॉलोज इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, बट सिंगल स्टैंड नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन follows in the informal communication, because in this type of network of communication we circulate the any information in a sequence. The second one is the gossip network. You know where आप गॉसिप करते हो, तो गॉसिप में आप क्या करते हो, आप बैठते हो सेंट्रल में और किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाते हो, तो इट इज़ such kind of gossip network. In this network one person communicate with all at the same time. इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल बंदा होता है जो सारी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन को सारे इन्फॉर्मल ग्रुप के मेंबर को सर्कुलेट करता है एट द सेम टाइम। द थर्ड वन इज़ प्रोबेबिलिटी नेटवर्क. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क है, ये जनरली आप लोग अपने यहाँ फॉलो करते हैं. प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में क्या होता है, एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट विद एनी वन एल्स रैंडमली. इसमें क्या होता है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी बंदे को रैंडमली देते हो, यानी आप सोचते नहीं हो कि ये इन्फॉर्मेशन इसको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए. आप खाली थे या फ्री थे या आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इस समय रह रहे हो, फॉर्मल या फ्री टाइम है, तो आप बैठ के 10 मिनट 15 मिनट बैठ के आपने वो इन्फॉर्मेशन उसको दे दी. फिर वो भी किसी के साथ फ्री बैठा था, टाइम पास करना था या उसे अपने माइंड को रिलैक्स करना था, तो उसने भी थोड़ा बहुत बात करने के लिए किसी को कोई इन्फॉर्मेशन बता दी. सो आप इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी नेटवर्क कहते हैं. इसमें ये डिस्कस पहले से प्रीडिटरमाइन नहीं होता कि ये इन्फॉर्मेशन आपको किसको सर्कुलेट करनी है और कितनी करनी है. तो आप रैंडमली मतलब विदाउट एनी डिस्कशन इन एडवांस आप ये इन्फॉर्मेशन किसी को भी सर्कुलेट कर देते हो. द नेक्स्ट वन इज़ अ क्लस्टर नेटवर्क. In this network, an individual communicate with only those people whom he trust. Probability का में क्या होता था, इन्फॉर्मेशन आप किसी को भी सर्कुलेट कर देते थे रैंडमली. बट इन क्लस्टर नेटवर्क आप इन्फॉर्मेशन उसी को सर्कुलेट करते हो जिस पे आपका ट्रस्ट होता है. आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करेगा या ये इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ नहीं करेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन आप सिर्फ उसी को शेयर करते हो जिस पे आपका ट्रस्ट होता है. सो
They are basically four networks of informal communication, that is single strand network, gossip network, probability network, and cluster network. So today we will discuss the basically two types of communication, that is formal communication and informal communication. Formal communication is a type of communication in which we pass the information or circulate the information through the official channel. It may be in written or oral. It may be of two types, that is vertical and horizontal. In a vertical communication, you communicate the information in between two levels in the organization, whereas in the horizontal communication you circulate the any information or ideas with the same level of management. Vertical communication can be divided into two types, that is upward communication and downward. In the upward communication, you circulate the information in the order form, and generally this communication applicables between the superior to between subordinate to his superior. But in downward communication, the information circulates from the superior to his subordinate in the order form. On the other hand, we also discuss the network of formal communication. They are basically few networks of formal communication, that is single chain. In this network, communication flows from the every superior to his subordinate in a single chain. Wheel network. In this network, all subordinate working under a superior communicate through him only, because in this type of network, superior circulate the information to his subordinates at all at same time. In the circular network, the superior subordinates the information in a circle, that is one person to another, and in the free flow the superior transmit the information freely, and under this communication network, communication is very fast. And in the inverted V, subordinates is allowed to communicate with his superior and his superiors. मतलब इसमें एक सबॉर्डिनेट जो होता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन अपने सुपीरियर से ही शेयर नहीं करता, बल्कि सुपीरियर के भी जो सुपीरियर्स होते हैं, बॉस होते हैं, उनके साथ भी सर्कुलेट करता है. एंड व्हाट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच the information is circulated between the informal group of peoples to satisfy their social needs. The most important part of this information, this communication, is that it spreads very fastly, and with the help of informal communication, we take a accurate feedback from the receiver about the any ideas, about the any information. But the drawback of informal communication, it is harmful for the business. It generally arises some kind of rumors in the organization which harm the operating activity of the business. And the most important part of or limitation of this communication is the source of informal communication cannot be easily deducted. So the responsibility regarding informal communication cannot be determined. There are various types of network of informal communication, that is single strand network, each person communicate with another in a sequence. Gossip network, one person communicate with all at the same time. Probability, any person can communicate with anyone else randomly. Cluster, individual communicate with only those person whom he trust. So आज के इस पूरे वीडियोस में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया. दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ formal communication and informal communication, as well as formal communication के types horizontal and vertical. Vertical may be classified into two terms, downward and upward. As well as we also discussed the
communication networks followed in the formal communication and in the informal communication. सो आई होप कि आज के इस पूरे कंटेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इन केस इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स और सजेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज़ आस्क मी इन द वीडियो ऑनलाइन क्लासेस एंड द व्हाट्सएप ग्रुप. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.